You're watching Reality Check. Today, millions of businesses across India were hoping to open shop under the new relaxed guidelines of Lockdown 3.0. But on the ground, business owners struggle to negotiate a maze of delayed or confusing guidelines, some of them so stringent that it would be a challenge to implement them. Take the case of Noida, the major urban industrial hub just east of Delhi, of where we are. We went there to find that even till late afternoon, the website, which was meant to be where businesses could register to open, hadn't gone online yet. Finally, the District Magistrate of Noida tweeted out a link to that website only at about 4 in the afternoon. This even though the Home Ministry had framed the broad guidelines for how businesses should open 3 days ago. Now, what are the guidelines that have been framed in Noida as an example of the kind of rules that small businesses particularly will have to follow across the country? A total, we found through a cursory glance, of about 30 guidelines in all. Now, some of them are fairly obvious, like screening workers and sanitizing workplaces, but there are also challenging ones, like the random COVID testing of at least 5% of employees of firms which have 50 or more businesses. If any worker found symptomatic, the government needs to be informed. If more than 50 workers are coming from red or orange zones, the business needs to organize transport. The workers' transport, though, should only be to 50% of the capacity. A minimum distance of 6%, 6 feet, between workers at the workplace, a challenge for many small businesses that operate from cramped quarters. 100% of the staff are meant to install the Arogya Setu app. And in perhaps one of the most challenging conditions, businesses need to identify quarantine facilities to isolate their workers if any of them are showing symptoms. The failure to do any of this could mean that they face action against the law. Now, is any of this realistic? We spoke to at least 7 business owners in Noida and the DM of Gautam Budh Nagar. Remember, this was even before the guidelines were made public. But even before those guidelines were made public, we understood from these business owners the serious challenges that they face as they struggle to reopen. Let's begin with the DM of Gautam Budh Nagar, who we interviewed, and began by asking him why it took so long to put up guidelines which should have been framed much, much earlier. Today is the day when business is supposed to start, industry is supposed to start, but at the moment we're recording this, it's about 12 o'clock, and a lot of these small businesses are telling us that they don't know how exactly it's going to start. You're supposed to start a website or a portal for clearances. That's not happened. So what's the delay? What's holding things up? There is absolutely no delay. Okay. I'd like to tell your viewers through you that from today we move ahead with positivity, but also with caution. Okay. And all the protocols that need to be put in place have been put in with full transparency. When is this portal going to be open? It's already under testing, and we hope to launch it within next few hours. Few hours? Yes, next few hours. And after that, we shall take applications only through online. And within 24 hours, the permissions shall be given, and also the conditions. We encourage the industries to self-regulate. How will their workers get to work, because there is no public transport? The workers can get to work through multiple modes. For example, the construction sites where builders would be housing them in situ at the place of construction or work. Right. They can also move using two-wheelers. And also the companies or the manufacturing units have been advised to give them chartered transport. So they'll have to organize buses and things to bring them. That has already been advised to them. So as you rightly pointed out, those planning issues have been taken care of today. So they are planning regarding sanitization, they are planning regarding their transport. So essentially, I would urge you to consider that planning is a very important part of preparation. No, that's of course, planning is important. The other thing is that workers are also coming from other parts of
this, I mean, not necessarily from Noida, but they're crossing state borders. How will they do that? As you would appreciate rightly, that we will also have to will have to be very careful with regards to the movement of people between the district and between the states. Okay. So the borders shall be sealed as before, and they will have to we cannot allow the movement of persons freely. So the workers, I'll complete. Yeah. The movement of goods is allowed freely. So the workers of Noida or the Greater Noida or Gautam Budh Nagar district, as the case may be, they will be allowed to work in the factories of or manufacturing units of Noida. and how will they actually come, like in terms of passes, whether it's staff or whether it's workers? What kind of pass? How will they get past checkposts and things like that? As I said, the borders are sealed, so the strict watch will be at the borders where Noida is connected to other states. Yes, or, I'm talking of within Noida. Within Noida, these employees would not be requiring any pass apart from the ID card that they would be having. Because one of the other things is that, as you know, according to the MHA rules, that they say that you have to pay your workers' wages for the entire period. Now, they've mostly paid the wages for March, that's what we hear, but it's not very clear how many will be able to pay April and so on. So, what sort of action, if any, will you be, I mean, are you going to be, if any of them are not paying wages, will they be penalized? We are having continuous talks since mid of April with regards to the payments that needs to be done. Right. Many of the companies have already done it also. Okay. Some of the companies have expressed some problems. They have been requested, and we are encouraging them. As I said, this is a time when But everybody suppose they should say, turn around and say, we can't pay. Will they be facing action? As I said, that so far our experience by and large has been quite good. Okay. And whenever there will be a violation of law will take its course, but we should not assume and make any statements to that effect. Sir, you have a very challenging task, but thank you so much for taking the time and speaking to us. My pleasure. Thank you you all so the much. very best. Thank you so much, sir. We are in Greater Noida. This is a buzzing industrial belt. Otherwise, today it should have been slowly reopening, but the machines and the men, in a sense, are silent. To understand why, we're joined by 4 business owners here in Greater Noida. तो मैं ईद से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना नाम बताएं और आपका बिजनेस. मैं सर BR भाटी और हम लोगों का केबल इंडस्ट्री है ये जो जहाँ पे आप कभी मौजूद हैं. इस वक्त आप ही के प्लांट में हम खड़े हैं. जी केबल इंडस्ट्री का. और हम लोग लो टेंशन में सारे साइज बनाते हैं. और ये आपका बिजनेस है? जी, ये हमारा बिजनेस है. सर, मेरा नाम SP शर्मा है. मैं बच्चों के एजुकेशनल बुक्स बनाता हूँ और मेरी फैक्ट्री यहीं से पास में ही है, थोड़ी दूर पे. I am Sarvesh Gupta. We are polymer compounder. Company name is Innocolor Compound Private Limited, and we are next to this company. We are standing here. So you make polymers, paints, is that in simple No, terms? we make color concentrate, color substance for the polymer, plastics. Okay. आई एम विशारद गौतम. मेरी यहीं पास में फैक्ट्री है. वी आर इन पैकेजिंग बिजनेस. ओके. पैकेजिंग यहाँ पे एसेंशियल में आता है जी. And हम लोग 31 मार्च से परमिशन मिलने के बाद काम कर रहे हैं. यहाँ पे काम कर रहे हैं. काम कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं. वेर ऑल वेटिंग कि जो पोर्टल है वो खुलेगा. अभी तक खुला नहीं है. खुल जाना चाहिए था अभी तक, बट इट विल बी ओपनिंग. फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट कई चीजें पे अभी भी सवाल है कि पोर्टल खुल भी जाता है तो देयर आर सेवरल इश्यूज. एक तो है कि अभी तक ट्रांसपोर्ट की बात अगर की जाए, सो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट ओपन, सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर ओन ट्रांसपोर्ट. इज दैट feasible? How do you organize your transport? लेबर को लाना और छोड़ के आना वो हमारी जिम्मेदारी होती है. एक बारी में एक ही आदमी को गाड़ी में बिठा के ले जा सकते हैं या ला सकते हैं. तो अगर मुझको 8 या 10 लोगों की भी परमिशन मिली है और उसका मेरी फैक्ट्री से डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो मुझको उसको लाना और ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है. प्लस एक लेबर को, एंड यू आर टेलिंग अस कि आपकी
प्लांट एक्चुअली खुली है बिकॉज यू आर डूइंग एसेंशियल आइटम्स। और अगर उसका 1 किलोमीटर से दूर का डिस्टेंस है तो वो लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप अपना एक एक लेबर ला रहे हैं? एक एक करके लेबर ला रहे हैं। उसके अलावा फूडिंग का भी हमारी जिम्मेदारी है। वो अपने घर से खाना भी नहीं ला सकता है, खाना भी हमने प्रोवाइड कराना है इंडस्ट्री ने। बट हमें एक नक्शे के तौर पे समझाइए कि ये जो 1 किलोमीटर 400 मीटर्स का जो पूरा सिस्टम है नोएडा जैसे एरिया में कैसे वर्क करेगा? जैसे सब, क्योंकि सारे एरिया सटे हुए हैं, तो हाउ विल दैट बी प्रैक्टिकल कि एक अगर भी हो गया 1 किलोमीटर एरियाज में कितने बिजनेसेस होंगे उससे अफेक्टेड? देखिए, अगर इंडस्ट्रियल उसकी बात करें तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में मिला के मैक्सिमम 20 किलोमीटर के दायरे में सारा सिमटा हुआ। अगर सेंटर से बात करें 20 किलोमीटर भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। अब ऐसे में अगर कोई भी एक पेशेंट कहीं निकल जाता है तो कंटेनमेंट जोन या रेड जोन या ऑरेंज जोन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब की वर्तमान की जरूरत ये है, अगर उद्योग चलाने हैं तो वो जो MHA की गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइव करना होगा। जॉइंट्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं जोन्स, उनकी जो वो है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर यही मैक्सिमम करनी होगी कि जहां एक पेशेंट है तो उसको 200 मीटर के गली में बंद कर दीजिए, जहां 400 मीटर की है 400 मीटर की, क्योंकि कोरोना की लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो और इसके लिए हमें तैयार होना होगा। और एक ये भी कटु सत्य है कि अगर पानी में गंदगी साफ करनी है तो पानी में उतरना होगा, और डूबने का खतरा भी वहीं होता है और तैरना भी वहीं आता है। राइट, यू हैव टू लिव विद दिस इन अ सेंस। हमारा ये कहना है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करेंगे उनका एक पहले मेडिकल चेक करा दिया जाए, उनको एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाए कि भाई ये फिट है, फिट टू वर्क। अब वो काम कर रहे हैं, उनका डेली हम मैपिंग करेंगे, टेम्परेचर मैपिंग कर देंगे, उनको सैनिटेशन के लिए हैंड वॉश दे देंगे, मास्क दे देंगे, ये सब हम कर देंगे। अब इसके बाद अगर किसी को होता है तो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करने के बाद उसे ले आके उसको ट्रीट करो, ठीक है, और जो एक स्क्रीनिंग द्वारा रीस्क्रीन कर लो। लेकिन उसको रोक देना, उसको पूरे प्रोसेस को खत्म कर देना, इट इज नॉट प्रॉब्लम, इट इज नॉट एडवाइजेबल। बट ओवरऑल जैसे ये जो अभी पोर्टल खुलने वाला है उसमें क्या, उसमें से करना क्या है आपको? उसमें व्हाट इज दिस पोर्टल दैट यू आर ऑल वेटिंग फॉर? उसमें क्या क्लैरिटी दैट इट वी आर जस्ट वेटिंग ए फॉर्मल acceptance of the formal acceptance from the DM office. Okay, go ahead. Unless and until we have that facility with us, it means we are not allowed to work. If suppose there are 3 staff and then 1/3, it means only 1. How it is possible? So beyond a certain limit, अगर 10 या 10 से ज्यादा हैं तब आपको 30% के लिए बात समझ में आता है। अगर है ही 3 तो फिर उसमें से एक ही रह गया। वो मिनिमम और एक और चीज था ऑन द पासेस, दैट बिकॉज अर्लियर आई थिंक सिस्टम था दैट ऑल ऑफ यू हैव टू अप्लाई फॉर पासेस, इज दैट राइट? आपके एम्प्लॉयज के लिए। तो अब ये बताया जा रहा है कि पासेस की जरूरत नहीं होगी, एम्प्लॉयज को अपने ID कार्ड्स बिजनेसेस दे के ला सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल चीज है? ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, वो बना सकते हैं। वेलकम। आप सब के एम्प्लॉयज के पास पासेस हैं? बना सकते हैं। आईडी कार्ड हम दे देंगे। एग्जांपल दे दूं, इन्होंने DI सेम स्टेट 2 districts, both were in red zone, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar. DIC had a simple DIC Ghaziabad had a very simple way of giving permission. That was half page of A4, where once the unit gets the permission, they were allowed to issue passes to their employees, to the laborers, on their own letterhead. They could go on adding with the details. So naturally, they could manage the things. Here, we had to stand there, get hold of the passes, and then issue them. So, प्रोसेस लंबा कर रखा था, अननेसेसरी के लिए बहुत लंबा। लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि अभी ये खर्च क्या है। Anyway, let's hope this is what they're telling us. Let's hope it comes true. In conclusion, I want to ask you कि आपका कितना भारी, मतलब अभी परमिशन भी आ गया, सारी रेड टेप आपने क्लियर भी कर दी, बट आप स्टार्ट कर क्या कितना डैमेज हुआ है आपको? एक एक करके बताइए। हाउ मच लॉस हैव यू टेकन? लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन में तो देखिए बहुत नुकसान हुआ है MSME के लिए। आपका खुद के बिजनेस की मैं पूछ मेरा रहा हूं, खुद का आपके जो है, सब फैक्ट्री में खड़े हैं, बंद हैं, क्या अंदाजा दे सकते हैं आप कितना? मेरा कम से कम जो है 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान मिनिमम हो चुका है इन दिस लॉकडाउन। एनी एस्टिमेट सर? सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का। अराउंड 7 lakhs। More than 10 to 15 lakhs। सेम अराउंड 10-15 lakhs तो नुकसान है। ये तो काइंड में है, लेकिन जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हुआ है टाइम का लॉस। जो हम काम कर सकते थे या जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही थी इस समय अपने बिजनेस के लिए, वो पूरी पुश हो गई है, पुश ऑफ हो गई है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि आधे लोग आएंगे नहीं लौट के। मगर सर एक महत्वपूर्ण चीज सरकार ने व्यापारी या उद्यमी और श्रमिक के बीच में तोड़ दी है,
हम दोनों के बीच में एक अनकहा रिश्ता होता था और एक बंधन होता था, जहां मैं उसकी बात मानता था, वो मेरी बात मानता था। मगर लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ और उन्होंने कहा पे आपको मिलेगी और सरकार दिलाएगी, वो जो रिश्ता था वो खत्म कर दिया गया। हम लोग आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग थी कि मैं बोलूं कि मैं आज नहीं कल आपको दे सकता हूं, तो वो बोलता था ठीक है मुझको कल नहीं परसों दे देना, मगर इसके अंदर और ऐड कर देना। हम भी कोशिश करते रहे ऐड कर दें, मगर वो रिश्ता सरकार ने खत्म कर दिया, जो कि नहीं कहेंगे ये कहते हुए कि यू हैव टू पे, अदरवाइज देयर विल बी एक्शन अगेंस्ट यू। श्रीनिवासन जी, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है, माइनस पॉइंट क्या हुआ है, जो लेबर्स यूनियंस हैं, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई जिसकी तनख्वाह नहीं मिली है वो ऑडिट लेबर यूनियंस करेंगी। तो आपस में एक जो परिवार वाला रिश्ता था लेबर्स के साथ में, देखिए हमारे वो परिवार का सदस्य हैं जो हमारे पास 10 साल से 15 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, वो ब्रेक हो गया। तो वो ब्रेक हो गया, विश्वास खत्म हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज और अभी अमेंड करना चाहूंगा, स्पेशली जैसे टेक्निकल पॉइंट कि 31 तारीख तक जो भी हमारा मतलब जो भी काम चल रहा हुआ था, जो प्रोसेस में था, वो वहीं पर रुक गया। और अभी आप जैसा देख रहे हैं मशीनों में, अब इनको चलाएंगे हम, तो इसमें फिर हमको एक मेजर मतलब जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनके सर्विसेज के लिए। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स अबाउट ऑल्सो ओपनिंग अप वुड बी द फैक्ट कि एज यू वर टेलिंग अस सर दैट द मशीन्स इन दिस पीरियड, इन पे जंग लग गई है। हाँ, जंग आप देखिए साइड में और देख लीजिए, अदरवाइज जैसे ये व्हील्स है हमारा, ये बिल्कुल स्टील की तरह शाइन करता है। जब इस पे केबल रोल होता है तो ये पूरा शाइन करता है। अच्छा, ये जो इस पे कोटिंग है ये, हाँ, अब ये सब जंग लगा हुआ है। अच्छा, ये सब जंग है। हो गया तो इस पे जंग लग गया अभी ये। तो इस तरह से पूरी मशीनरी जो है ये भी जैसे देखें तो ये सब एक तरह से रस्टेड हो गई है। रस्टेड हो गई है। अब इसमें मेजर मतलब मेंटेनेंस की हमको जरूरत पड़ेगी, जब हम चलाएंगे तो उसमें मेजर मेंटेनेंस चलेगा, दैट्स वेरी कॉस्टली। एंड दिस विल टेक हाउ लॉन्ग टू गेट दिस? दिस विल टेक मिनिमम 7 to 10 days just to get the machines cleaned and going back on track. Definitely. Not all businesses, as we know, have stopped. Some are allowed to operate even during the lockdown, but even they are on the brink. I'm joined by Amit Sharma. We are here in your unit in Greater Noida. This is a packaging unit. Right. And you're allowed to operate because you're making cartons for Essential items. Essential. Yeah, people who are making essential items, we are supportive to them. drug, We- medical, pharmaceuticals. Exactly, pharmaceuticals, hand sanitizers, or Okay. food products. Okay. So you were telling us, sir, that right now what we can see, you have 2 workers working here in your unit, Yeah, and the camera pans, you've got 2 more working there. yeah, like 3. That's So- it. You yeah, have just 2 machines working. Exactly. So out of the entire How many unit, machines do you have? we have around 15 machines here. You have 15. Yeah, and out of that only 2 are running. And Why is that? What's the problem? basically, initially we have been allowed just 30% of the labor, less than. So whatever we have been able to get hold of, Yeah. we have taken the permission for them, and they are running the machines. Oh, initially it was 30%. Now they're saying that you can have as many. We have not got that You order haven't still got that yet, order. till now. But one was that it was 30% of labor. The other was, you were saying there's also a labor shortage. I mean, we had. This is actually right now we don't know, even if they give us the permission to get hold of our entire labor. Right. We don't know how much is going to come back. So and we are supposed to pay the salaries for the entire Entire period. period, How whatever the many- lockdown period has been. How many labor did you have otherwise? I had around 17 to 18 people working for us. And now we can only see 4. Yeah, exactly. Four to five are there. So the other thing is that even though you're operating at this time, Yeah. with this limited labor, are you taking a hit because of that? Yeah, the thing is, see, what we were generating, the kind of sales we were generating before the lockdown was around approximately 40 to 45 lakhs a month. Okay. Now we have come down to, it was just, we had to close at 3 to 4 lakhs rupees last month, and till now, naturally, we haven't sold anything. Today is 4. So here, in a sense, we get the idea that even though there are some firms, some factories that are open during the lockdown, the challenges still remain enormous. As we can see, this is an industrial area where we are. The camera can pan in every direction. You'll just see shut, 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 shut. And to understand why, we're joined here
by Vipin Malhan, who is the head of the Small Business Association here in Noida. Mr. VK Seth is here. He's also a part of the same association. तो विपिन जी, ये बताइए कि अभी हम आज ओपनिंग डे होना था, क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है यार, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आज जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि उन्होंने एक गाइडलाइन भी कल तक जारी करी कि हमारी इंडस्ट्री आज यहाँ पर खुलेगी। पर अभी तक देखिए 1 बजने वाला हो गया है, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सी इंडस्ट्री को, लेबर को कहाँ से पासेस मिलेंगे, कहाँ पे वो अप्लाई करे। बस हाँ, इतना जरूर मालूम है कि एसेंशियल आइटम्स को हमें मिला गया और कंटिन्यू प्रोसेस को इन्होंने ओके किया है। तो तकरीबन यहाँ पर 11,000 के करीब इंडस्ट्री है। 11,000 टोटल नोएडा में है। टोटल नोएडा में है। तो उसमें ये लगता है कि 15 से 20% इंडस्ट्री को परमिशन एज पर उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइन आई है उसमें से उनको मिलेगी। पर उनको कैसे मिलेगी? आदरणीय डीएम साहब ने एक ट्विटर किया था कि हम एक ऑनलाइन पोर्टल करेंगे, पर वो ऑनलाइन पोर्टल का सवेरे से सारे उद्योगपति इंतजार कर रहे हैं कि जब पोर्टल आए तो उसके अंदर हम लोग अपने आप को अप्लाई करें। सवेरे मॉर्निंग से अभी तक सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं। हजारों टेलीफोन हम रिसीव कर चुके हैं। अच्छा। कि हमें किस तरीके से परमिशन मिलेगी, किस तरीके से हमारे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। सवेरे से यही हाल चल रहा है कि जो इंडस्ट्री कैसे हम खोलें। सबका सवाल यही है कि इंडस्ट्री कैसे आपके व्हाट्सएप पे भी आप हमें दिखा रहे थे कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं जी, उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। उसमें यही सब लोग कंफ्यूज हैं, यही पूछ रहे हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री में हमारी लेबर कैसे आएगी। राइट। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम नोएडा कैसे आएंगे। हमारे जो मैनेजर स्टाफ है वो हमारा दिल्ली में रहता है या फरीदाबाद में रहता है, वो नोएडा में किस तरीके से फंक्शनिंग कराने आएगा। हर एक इंडस्ट्री तो शायद इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी कि वो हर एक अपने वर्कर के लिए कहीं बसेस का इंतजाम करे। हाँ, अगर इन्होंने स्कूटर बाइक्स का परमिशन दे रहे हैं ये लोग, तो उसमें वर्कर आ सकता है। पर अभी जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा हम लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से हमारे श्रमिक हमारी फैक्ट्रियों तक पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि वर्कर्स क्या है भी, क्योंकि अभी जैसे उनको अलाउ कर रहे हैं वर्कर्स जाने के लिए वापस, तो क्या वर्कर हैं? अवेलेबल नहीं है। वर्कर कहाँ से आएंगे? अभी आपने उनको एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने यहाँ से शिफ्ट होना है वो चले जाएं। अब जैसे इन्होंने बताया दिल्ली से हमारा वर्कर आना है, तो दिल्ली से वर्कर आने को डर रहा है, वो कैसे क्रॉस करेगा बॉर्डर सील कर रखा है इन्होंने, तो वर्कर को आने में भी परेशानी है। और वर्कर्स भी आप कह रहे हैं कई लोग तो शायद वापस भी घर जा चुके हैं। जी। थर्ड पॉइंट इज वेजेस। वेजेस कहा है कि भाई आपको वेजेस पे करना है, आप कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने कहा जब भी एमएचए की गाइडलाइन आई कि आप लोग वेजेस पे करिए, वो पहला लॉकडाउन था। प्रथम लॉकडाउन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था, तो उस मार्च तक की तो हम लोगों ने सैलरी पे कर दी है। पर मार्च की सैलरी आपने पे कर दी है। आपके भी आप दोनों के यूनिट्स हैं, आप बता रहे थे। सबके हैं, सबने पे कर दिए यहाँ पर इंडस्ट्री। अब बात आ जाती है अप्रैल की। अप्रैल हमारी सारी इंडस्ट्री पूरी बंद रही है, तो हमने यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय लेबर कमिश्नर साहब को, आदरणीय मंत्री जी को, सबको पत्र के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साफ साफ कह दिया है कि हम सैलरी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। यू कैन नॉट पे। बिल्कुल, बंद पड़ी यूनिट से हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उसका उल्लंघन करेगा एज पर द लॉ उस पर एक्शन हो सकता है। देखिए, नोएडा की अगर हम सैलरी का एक अमाउंट बताएं तो तकरीबन यहाँ पर 10 लाख के करीब श्रमिक हैं। यहाँ की सैलरी 1600-1700 करोड़ रुपए बैठती है। हम आज की डेट में इस कंडीशन में तो पहुंच गए हैं कि हम जेल चले जाएंगे, हम कोई भी लीगल कार्रवाई ये करेंगे, हम तैयार हैं, पर अब हम सैलरी नहीं दे सकते। अगर ये सोचें कि हमें किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में डाल देंगे, FIR कर देंगे, तो मोस्ट वेलकम है। ये इनके हाथ में जो करना है ये करें, हमारे हाथ में जो होगा हम करेंगे। These are very strong words। आप कह रहे हैं आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? सर, अगर सरकार मजबूर कर रही है हमें, मेरे को सबसे बड़ा दुख होता है सर, हमारे यहाँ 35-35 साल से वर्कर काम कर रहा है, और आज सरकार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आज देखो हमारे फैमिली के मेंबर हैं जो लेबर जो है, आज हमारा और उनमें टकराव पैदा कर रहे हैं। ऑन अ गिवन डे अगर कैलकुलेट करें, एवरी डे इज डिले कॉस्ट मनी, तो क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं हम नोएडा में? इट कम्स टू अबाउट 50 करोड़ पर डे। एवरी डे 50 करोड़ पर डे। दिस इज द रेवेन्यू कलेक्शन इन नोएडा। इन नोएडा, यस। 50 crores per day, so 1500 crores
In a month. in a in a month. month, and 3,000 crores if you say 2 months. 2 months. Things have been So shut. this is the last we have already faced for 2 months. I mean 3,000 crore. ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सरकार का नुकसान है, ये रेवेन्यू है ये आपकी। रेवेन्यू है, ये सरकार का नुकसान है। तो बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के यू आर सेइंग इफ इट रिक्वायर्स यू आर प्रिपेयर टू गो टू जेल बिकॉज वर्कर्स यू कैन नॉट पे वेजेस। अब जो आ रहा है कि एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात हो रही है, पैकेज आ रहा है, ऐसा काफी वक्त से सुनने में हम आ रहे हैं। आज 40 दिन हो गए, 40 दिन से हर रोज जब भी टेलीविजन के ऊपर कोई भी बड़ा चेहरा आता है मंत्रालय का, तो हमें लगता है कि शायद कोई पैकेज आ रहा है, पर वो पैकेज कोई नहीं आ रहा। हमारे कान पूरे के पूरे थक गए, आंखें हमारी पथरा गई उस पैकेज को देखने के लिए। और हमने तो सरकार को बताया भी है कि अगर ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो आप सीधा सीधा एक काम करिए, एक अध्यादेश लेके आइए, इस देश में जितने मंदिर हैं, जितनी चर्च हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितनी मस्जिद हैं, सबको आप अपने पास में ले लीजिए और उसका पैसा पूरे के पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आदमियों के बीच में कर दीजिए। वो पैसा आपके पास इतना पड़ा हुआ भंडार भरे पड़े हैं, वो किस काम के हैं? वो सिर्फ हमारे 130 करोड़ के आदमियों का ही पैसा है।